So, Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators, session number 18 from the class of Communication Skills Development and Learning. So, let's have a quick recap of what we have learned in the session 17. We have learned the difference between the use of when and if. Used for both are used in case of conditions, but when is used in case of such a condition which you are very certain of, which you are sure of, whereas if is used only in case of those conditions which you are not clear about or which you are not sure of. Then fine and finely. So fine can be used in three ways: as an adjective, as a noun, as an adverb. Whereas finely is how much finely is how much degree to you can cut something. How much fine something has to be cut is called finely. And then hard nosed is someone who is hardworking, determined, and hard minded. And at the same time, hard nosed is used to describe someone who जिसको हम हिंदी में नचड़ा कहते हैं, that is also called hard nose. And then bite the bullet is when you are forced to accept something which is very difficult to do or which is very unpleasant to do. And then we have word root analysis where we understood CERT, CHROMO, and then CHRONO, and then side or size. And then we understood perfect tenses and perfect continuous tenses. So in case of any doubt, please let me know and we shall start from the session now. A quick update for all of you that we have discontinued the daily lesson session now because we are done with a lot of phrases that we use in daily life, and we'll switch that session with business English, where we have to use the phrases that we have to use in our daily commune, in offices or at schools or at work. So let's go to the first section, that is verbal skills. We'll understand the difference between last, for the last, and in the last. So these three phrases or these three words are used to describe about an ending or the termination of something. ये जो है ना लास्ट, फॉर द लास्ट और इन द लास्ट, ये किसके लिए डिस्क्राइब होता है? किसी चीज के खत्म होने पे या किसी चीज के अंतिम घड़ी पे इस्तेमाल होता है. तो इन तीनों का डिफरेंस देखते हैं. तो फर्स्ट सी दिस सेंटेंस, आई वेंट टू द डॉक्टर्स ट्वाइस लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर. अब यहाँ पर जो वर्ड है ना लास्ट, दैट कैन बी यूज्ड विद ईदर मंथ, वीक और ईयर. मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई वेंट टू द डॉक्टर्स ट्वाइस लास्ट मंथ, या आई वेंट टू द डॉक्टर लास्ट ईयर, मैं डॉक्टर के पास पिछले साल गया था. एंड हियर द लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर डू नॉट हैव एनी कनेक्शंस टू द प्रेजेंट नाउ. तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि जो सिंपल जो लास्ट यूज होता है, इट हैज नो कनेक्शन विद लास्ट दिस प्रेजेंट मोमेंट और प्रेजेंट ईयर और प्रेजेंट मंथ. अगर मैं लास्ट वीक यूज कर रहा हूँ तो उसका कनेक्शन प्रेजेंट वीक से नहीं है. अगर मैं लास्ट मंथ यूज कर रहा हूँ तो उसका प्रेजेंट मंथ से कोई कनेक्शन नहीं है. सो दिस phrase, the simple last, is always used with something which has no connection with the present time or present now. So ये सबको समझ आया कि लास्ट कहाँ यूज होना है. ओके, अब आते हैं दूसरे पे, फॉर द लास्ट एंड इन द लास्ट. लेकिन उससे पहले आप मेरे को ये चीज कंफर्म करके बताइए कि अगर मुझे कल के बारे में बात करनी है, बीते हुए कल के बारे में, सो आई विल यूज द वर्ड yesterday morning या yesterday evening. ठीक है, वी हैव पार्टीड yesterday morning और yesterday evening. मैंने कल, जो बीता हुआ कल है, उसकी सुबह में पार्टी की थी, या जो बीती हुई शाम है कल की, उसमें मैंने पार्टी की थी. लेकिन नाइट के केस में मैं yesterday क्यों नहीं यूज करता? मैं ऐसा क्यों नहीं यूज करता आई हैव पार्टीड yesterday night, whereas I always used we have to always use last night instead of yesterday night. So we partied last night. तो अब इसमें last night क्यों आया? इसमें yesterday night क्यों नहीं आता? Has anyone any idea about it? Okay, see, this is an exception. इस नाइट के केस में लास्ट नाइट इसलिए यूज करते क्योंकि इसका कनेक्शन ऑलरेडी है प्रेजेंट मॉर्निंग के साथ. तो जो बीती हुई रात है वो अभी की सुबह या अभी के दिन में कन्वर्ट होती है. और सिर्फ यही लास्ट वाला जो फ्रेज है ना, लास्ट, ओनली लास्ट, उस केस में सिर्फ ये इकलौती एक्सेप्शन है.
So last night is something which has connection to the present time. Okay. Except last night, there is no other word which has connection to the present time in English, and that word shall start with last, only last. तो अब हम देखते हैं कि फॉर द लास्ट और इन द लास्ट में क्या फर्क है. सो फॉर द लास्ट एंड इन द लास्ट. सो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई वॉच्ड द सीरीज फॉर द लास्ट मंथ. ठीक है. और दूसरा सेंटेंस मैं बोलता हूँ, आई केम टू वर्क ओनली वंस इन द लास्ट वीक. तो फॉर द लास्ट मंथ एंड इन द लास्ट वीक, दीज टू आर वेरी डिफरेंट फ्रेजेस. इसका मैं मोटा मोटा आइडिया देता हूँ. जहां पर भी फॉरवर्ड यूज होता है ना, जैसे फॉर 6 days, फॉर 7 days, तो इसका मतलब है वो 6 के 6 दिन पूरा, हर एक दिन. या फॉर द लास्ट मंथ इज एवरी डे ऑफ द लास्ट मंथ. तो मैंने पिछले महीने की हर एक दिन पे सीरीज देखी. आई वॉच द सीरीज फॉर द लास्ट मंथ. लेकिन इन द लास्ट वीक का मतलब होता है कि 1 या 2 दिन, या सिलेक्टिव डेज इन द लास्ट वीक. आई केम टू वर्क ओनली वंस इन द लास्ट वीक. मैं पिछले पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऑफिस आया हूँ. वैसे इसका एक और एग्जांपल है, आई हैड फ्लू फॉर द लास्ट वीक. मेरे को पिछले हफ्ते के हर एक दिन फ्लू रहा. और वही जो मैंने आपको बोला कि दिस मीन्स द स्पीकर हैज फ्लू एवरी डे and it is continuous over a week. Every day the speaker was suffering from flu. And I ate breakfast only. Just give me 1 second. There is someone who has raised his hand. Let me check. Okay, अबरार आपको पूछना है कुछ? I don't think so. He has to ask something. आपकी आवाज नहीं आ रही अबरार. आपको पूछना है? I think he has mistakenly raised his hand. आपको अगर कुछ पूछना है तो you can type in chat. अब ये जो सेंटेंस है, आई एट ब्रेकफास्ट ओनली वंस इन द लास्ट वीक, इसका मतलब है कि मैंने पिछले पूरे हफ्ते में ब्रेकफास्ट सिर्फ एक ही दिन किया. तो या तो मेरी शिफ्ट ऐसी है या मेरा काम ऐसे कि मुझे ब्रेकफास्ट करने को नहीं मिलता, और पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन ब्रेकफास्ट किया. तो इन द लास्ट वीक या इन द लास्ट मंथ या इन द लास्ट ईयर या इन द लास्ट डेज, उसका मीनिंग है दिस मीन्स द एक्शन इज डन ओनली वंस इन द मेंशन टाइम फ्रेम. तो जो भी टाइम फ्रेम होगा ना, वीक, मंथ, ईयर या डेज, अगर इन द लास्ट उसके साथ लगा, दैट मीन्स उनमें से किसी एक दिन या कुछ सिलेक्टिव डेज में. लेकिन फॉर द लास्ट मंथ या फिर फॉर द लास्ट टाइम फ्रेम, उसका मतलब होता है कि पूरे हफ्ते कंटिन्यूअसली या पूरे महीने कंटिन्यूअसली हर एक दिन. सो इज इट क्लियर विथ टू एवरीवन और एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को पूछना है इसमें से कुछ? Okay, let's move to the next section. See, for the last and in the last means for a period or point or in the past to up till now. और for the last और in the last का connection present time के साथ होता है, whereas last का connection present time के साथ नहीं होता. So let's move to the second part of verbal skills. Difference between unless and as long as. तो आप में से कौन बताएगा कि unless और as long as का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? फैसल, आप? लड़कों में सिर्फ फैसल है जो आंसर देता है. अनलेस मतलब जब तक. ठीक है. और एज लॉन्ग एज? As long as from one time to another time. वो भी तो जब Period तक. of time. ओके, मैं बताता हूँ. देखो, जब तक मुझे ये नहीं, जब तक मुझे. हाँ देखो, ये जो अनलेस, एज लॉन्ग एज और इफ, इन दोनों को अगर आप ट्रांसलेट करोगे ना, तो इनका मतलब निकलता है अगर. जहां पर मुझे वर्ड यूज करना है ना अगर, वहां पर मैं अनलेस, एज लॉन्ग एज या इफ को यूज करूंगा. लेकिन अनलेस का लिटरल मीनिंग होता है जब तक, और एज लॉन्ग एज का लिटरल मीनिंग होता है तब तक. ठीक है.
अनलेस इज जब तक, एज लॉन्ग एज इज तब तक, और इफ का लिटरल मीनिंग होता है अगर। तो तीनों जो है ये कंडीशनल्स है, और तीनों ये अनलेस एंड एज लॉन्ग एज इज यूज्ड इन इन केस ऑफ इफ अगर मेरे को इफ नहीं यूज करना है तो मैं अनलेस और एज लॉन्ग एज को यूज कर सकता हूँ। बट इन दोनों में फर्क क्या है वो हम देखते हैं अभी अनलेस और एज लॉन्ग एज में। सी, अनलेस इज जब मेरे को वर्ड यूज करना है ना इफ नॉट, तो मैं अनलेस यूज करूंगा, जबकि एज लॉन्ग एज मैं सीधा इफ की जगह यूज कर सकता हूँ। सो इट कैन बी यूज्ड एज इफ, वेयर एज अनलेस कैन बी यूज्ड ओनली इन प्लेस ऑफ इफ नॉट। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। अनलेस वी स्टॉप मेकिंग अ लाउड नॉइज द बेबी कैन नॉट स्लीप। तो जब तक हम ऊंची आवाज या शोर मचाना बंद नहीं करेंगे तब तक बच्चा नहीं सो पाएगा। देखो अनलेस जो है ना, इसके ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। इसके लिए आपको नॉट वर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने अनलेस की जगह इफ यूज करना होता ना तो मैं कहता इफ वी डू नॉट स्टॉप मेकिंग ए लाउड नॉइज द बेबी कैन नॉट स्लीप। तो अगर मैं इफ नॉट को हटा दूंगा तो बन जाएगा अनलेस वी स्टॉप मेकिंग ए लाउड नॉइज द बेबी कैन नॉट स्लीप। और वैसे ही है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू डू नॉट कम। तो मैं पार्टी में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आओगे। तो अनलेस का क्लियर हुआ, अनलेस कहाँ यूज हो रहा है। देखो ये आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू डू नॉट कम, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इफ यू डू नॉट कम टू द पार्टी आई विल नॉट ऑल्सो नॉट कम। अगर तुम पार्टी में नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। ये क्लियर हुआ अनलेस सबको? ओके। अब एज लॉन्ग एज को देखो। देखो अनलेस अपने आप में एक वर्ब है, और अनलेस के आगे वाला वर्ब जो है उसको नेगेटिव यूज करना है। जब भी आप अनलेस को यूज करोगे उसका जो सेकंड क्लॉज है, जैसे अनलेस वी स्टॉप मेकिंग ए लाउड नॉइज कॉमा सेकंड क्लॉज है द बेबी कैन नॉट स्लीप। तो कैन नॉट स्लीप इज ए नेगेटिव वर्ब। वैसे यहाँ पर अनलेस के बाद वाला जो क्लॉज है यू डू नॉट कम इज ए नेगेटिव वर्ब। whereas as long as को कैसे यूज करना है, as long as we do not make a loud noise the baby will sleep। तो जब यहाँ पर है कि जब तक ये तब तक हम लोग एक ऊंचे ही शोर नहीं करेंगे बच्चा सोता रहेगा। तो बच्चा कब तक सोता रहेगा, बच्चा तब तक सोता रहेगा जब तक हम ऊंचा शोर नहीं करेंगे। और उसी की तरह है आई विल गो टू द पार्टी एज लॉन्ग एज यू कम टू। तो जब तक तुम पार्टी में आओगे मैं भी तभी तभी तक जाता रहूंगा। तो लेकिन एज लॉन्ग एज के केस में जो वर्ब है उसको पॉजिटिव यूज करना होता है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है अनलेस और एज लॉन्ग एज में? ओके, लेट्स मूव टू द वर्ड रूट एनालिसिस एंड प्रोनाउंसिएशन क्लास। तो पहला जो है वो हम पढ़ेंगे आज को, द सेकंड इज कॉल और कॉम, द थर्ड इज कॉन्ट्रा और कॉन्ट्रो, एंड द फोर्थ इज कॉन। ठीक है। वैसे कॉन अपने आप में भी एक वर्ड है जिसको हम कॉन आर्टिस्ट बोलते हैं, लेकिन कौन एक रूट वर्ड भी है और इससे हम वर्ड्स बनाना भी सीखेंगे। पहला है को। सो को का मतलब होता है विद, टुगेदर या जॉइंट। सिंपल इसको हम बोल सकते हैं एक साथ। तो कोऑपरेट इज वर्क टुगेदर। को एजुकेशन इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें मर्दों और औरतों को एक साथ पढ़ाया जाता है, एजुकेटिंग मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर। एंड को ऑथर इज एन ऑथर who writes along with another author या who collaborates with another author। क्लियर है? ओके, लेट्स गो टू द सेकंड रूट वर्ड दैट इज COL और COM। इनका भी मतलब टुगेदर और जॉइंटली होता है जैसे को का होता है। सो कोलैबोरेट इज टू वर्क टुगेदर, commemorate is to memorize together, and composition is an arrangement of putting together of parts। okay? तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम सारे के सारे पार्ट्स को एक साथ रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। ओके, एंड द थर्ड इज CONTRA और CONTRO। सो कॉन्ट्रा और कॉन्ट्रो इज अगेंस्ट और ऑपोजिट। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो था टुगेदर या जॉइंटली, लेकिन कॉन्ट्रा और कॉन्ट्रो होता है अगेंस्ट और ऑपोजिट। सो द फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है टू आर्ग्यू अगेंस्ट,
इख्तलाफ में बोलना या खिलाफ बोलना। देन कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी होता है नॉट इन एग्रीमेंट, कि मैं इनके साथ अहद में नहीं हूँ, मतलब कि मैं इनकी बात नहीं मानता, आई एम कॉन्ट्ररी टू हिम। एंड कॉन्ट्रोवर्सी इज डिसएग्रीमेंट। ओके, एंड द लास्ट इज कॉन। सो कॉन इज ऑल्सो विद और जॉइंटली। कॉन भी टुगेदर विद या जॉइंटली का है इसका मीनिंग। तो फर्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर है टू एग्री विद समवन, किसी की बात मान लेना, किसी के साथ हो लेना, इज कॉन्कर। कॉन्टेम्पररी, अब कॉन्टेम्पररी जो वर्ड है, इट्स ऑफ द सेम टाइम पीरियड एज द अदर्स। एंड कन्वेंशन, कन्वेंशन इज ए गैदरिंग ऑफ पीपल विद ए कॉमन इंटरेस्ट। कन्वेंशन होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं जिनका इंटरेस्ट एक जैसा होता है। सो जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं ना आजकल, कि आर्ट कन्वेंशन है कहीं पर, या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कन्वेंशन है, जावा कन्वेंशन है। मतलब एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर जावा के लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सो दैट इज कन्वेंशन। बट कॉन्टेम्प्ररी का जो लिटरल मीनिंग हम लोग डे टू डे लाइफ में इस यूज करते हैं या जो सोचते हैं ना, वो इसके एक्चुअल मीनिंग से बहुत डिफरेंट है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है सेम टाइम पीरियड एज अदर्स, वेयर एज कॉन्टेम्प्ररी जो वर्ड है, ये देखा गया कि सबसे ज्यादा यूज होता है रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में। और ये कब यूज करते हैं? अक्सर वेटर्स यूज करते हैं या जिन्होंने ऑर्डर किया होता है वो यूज करते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि कॉन्टेम्प्ररी का मतलब है फ्री, कि मैंने बर्गर मंगवाया और तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मुझे फ्री मिली, सो दैट इज कंटेम्प्रेरी। दैट इज नॉट कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी होता है कि एक कुछ ऐसी चीज जो सेम टाइम पे सर्व की जाए किसी और चीज के साथ। जैसे मैंने बर्गर मंगवाया, या फिर मैंने लेट से मैंने दाल मंगवाई, मैंने दाल मखनी मंगवाई और उसके साथ मेरे को इन्होंने घी वाले परांठे दिए। सो वो घी वाले परांठे हैं वो दाल के साथ सर्व होंगे, और दाल घी वाले परांठों के साथ सर्व होगी। ये दोनों सेपरेट सर्व नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दाल आएगी मेरे सामने और फिर आधे घंटे के बाद परांठे आएंगे, तब तो दाल ठंडा हो जाएगा। सो दीज टू आर कंटेम्प्ररी टू ईच अदर, क्योंकि इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है। सो किसी को डाउट है कंटेम्प्ररी में तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और हम किस वे में लेते हैं? So contemporary is not free. Contemporary is something which is served at the same time period as others. Do anyone has any doubt? Okay, we shall move to the next section. That is grammar section now. तो हमने जो अभी तक पढ़ा था वो हमने चारों के चारों टेंसेस पढ़ लिए हैं। तो सो we'll interchange all the tenses, and I'm sorry once again interchange की स्पेलिंग गलत है ऊपर स्लाइड में। सो प्रेजेंट टेंस का देखते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो पहला सेंटेंस है आई वॉक टू द स्कूल टुडे। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन बनाएगा? अरे जल्दी कर लो, आज ऐसे भी बहुत छोटा सेशन है। I am walking to the school today. यस, आई एम वॉकिंग टू द स्कूल टुडे। I walked the वेरी I गुड। walked एंड the हाँ, इसका प्रेजेंट परफेक्ट है आई हैव वॉक टू द स्कूल टुडे। और प्रेजेंट yeah. परफेक्ट कंटिन्यूअस I I have have been been I walking walking. to the have school. been walked to school today. I have, see present I have perfect been continue, walking. I have been walking to the school today। ठीक है, Yeah. क्लियर सबको? Yes. ओके, चलो पास्ट में आते हैं। सो इसके भी चार ही हैं। सो पास्ट का है आई वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। पास्ट कंटिन्यूअस I was no. यस आई I, वाज, I was going to yesterday party आई वाज yesterday. गोइंग टू द पार्टी यस्टरडे। वेरी गुड। I was पास्ट going परफेक्ट to this. Hmm. Past I perfect had होगा gone to I the I party yesterday. had been gone to a party. I had gone. आई हैड गॉन टू द पार्टी यस्टरडे। वेरी गुड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
I had I been had going been to the going party. to the been party going. yesterday. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो इसका असाइनमेंट मैं कैंसिल कर दूंगा टेंसेस का, ये सब आपको आता है, ठीक है. सो देयर विल बी नो असाइनमेंट फॉर टेंसेस. अब फ्यूचर टेंस है सिंपल continuous perfect or perfect continuous. So I will meet you tomorrow. This is simple future tense. So what will be the future continuous? I will be meeting you tomorrow. Be I will be meeting to meeting you you. tomorrow. Very good. Future perfect. I I will have yeah, been meeting you tomorrow. I will be I will have been. I meet will you have tomorrow. met you tomorrow. हाँ वो have been जो है ना वो continuous वाला है, ये perfect continuous है. I will have been meeting you tomorrow. So very good. I am very happy to see the progress that you all have guys made. एंड मेरे को सच में बहुत खुशी होती है कि जब इस तरह से रिस्पॉन्स आते हैं जिसमें सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं. एंड इसी तरह के रिस्पॉन्स के लिए क्या है, the next two sessions that we are going to have are once again dedicated sessions for non-verbal section of communication skills, where we'll understand the body movements, which will include body language and postures, gestures and eye contacts and eye movements. और उसके साथ साथ अगर टाइम हुआ तो वी शैल फिनिश ऑफ पैरा लैंग्वेज एज वेल. ओके, बट बिफोर दैट आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं. तो कौन बता सकता है मेरे को कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, या फिर ये क्या चीज है, या क्या हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, किसी को आइडिया है? देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कोई ना कोई कंडीशन आपको दिखाते हैं. जैसे हमने पिछले सेशन में व्हेन और इफ के बारे में पढ़ा था कि व्हेन और इफ तब यूज होते हैं जब हमें कोई कंडीशन दिखानी होती है. व्हेन तब यूज होता है जब हम उस कंडीशन के बारे में बिल्कुल श्योर हों. जैसे व्हेन आई विल हैव ब्रेकफास्ट आई विल ईट टोस्ट. तो जब मैं नाश्ता करूंगा मुझे टोस्ट खाना है. तो इस सेंटेंस से ये पता लगता है कि नाश्ता तो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है. तो ये जो कंडीशन थी ना वो उसमें मेरे को श्योरिटी थी. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ इफ आई हैव ब्रेकफास्ट आई विल हैव टोस्ट, तो ये सेंटेंस बन जाता है अगर मैं नाश्ता करूंगा तो मैं टोस्ट खाऊंगा. और इफ वाला जो कंडीशन है उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें आपको पक्का नहीं है कि आप नाश्ता करोगे या नहीं करोगे. तो उसी के बेसिस पे हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं. और तीन तरह की कंडीशंस होती हैं. लेकिन उससे पहले, conditional sentences are those sentences which describe something which is necessary for a particular result to happen. देखो कंडीशन एक्चुअली होती क्या है. कंडीशन एक ऐसी चीज होती है जिस पर एक रिजल्ट डिपेंड करता है. इंजीनियरिंग लैंग्वेज में भी यही होता है, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में भी यही होता है, मेडिकल लैंग्वेज में भी यही होता है, ठीक है. सो अगर हम बोलते हैं कि सामने वाले का बॉडी टेम्परेचर तभी राइज करता है जब उसको बुखार हो, तो बुखार होना इज द कंडीशन कि बुखार होएगा तो बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा. सो बॉडी टेम्परेचर राइज होना इज द रिजल्ट एंड बुखार होना इज द कंडीशन. वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कल बारिश होगी तो मेरे पास छाता, मैं छाता लेकर निकलूंगा, तो मेरा छाता लेकर निकलना इज रिजल्ट एंड अगर कल बारिश होगी इज द कंडीशन to fulfill that result or the condition which is necessary for that particular result. तो ये समझ आया सबको what is conditional sentence? The conditional sentence is a sentence which is used to describe something which is necessary for a particular result to happen. पहली चीज. अब conditional इसमें दो चीजें होती है. The first is conditional clause and the second is main clause. तो main clause जो होता है that is the result that we want to have, and conditional clause is the condition on which the main result depends on. ठीक है. तो कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए उनकी दो पार्ट्स होंगी, ठीक है. हर एक कंडीशनल सेंटेंस के दो ही पार्ट्स होते हैं. एक उसका मेन क्लॉज होता है. मेन क्लॉज वो होता है जो एक्चुअल रिजल्ट होता है. जैसे मैं बोलता हूँ कि आई विल हैव अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, ठीक है. तो आई विल हैव अम्ब्रेला इज द मेन क्लॉज कि मेरे पास छाता रहेगा या नहीं रहेगा ये बारिश पे डिपेंड करता है. आई विल हैव एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, मेरे पास छाता होगा अगर बारिश होगी तो अगर बारिश होगी इफ इट रेन्स इज द कंडीशनल क्लॉज एंड आई विल हैव एन अम्ब्रेला इज द मेन क्लॉज. तो वैसे हम इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं. कंप्लीट सेंटेंस है इफ यू वर्क हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम्स
आई विल गेट यू ए वॉच। अगर तुम एग्जाम्स में बहुत हार्डवर्क करोगे तो मैं तुम्हें एक घड़ी लेकर दूंगा। तो इसमें जो कंडीशनल क्लॉज है वो इफ से स्टार्ट हो रहा है। और वैसे ही एक और सेंटेंस है, इफ आई हैड अ पासपोर्ट आई वुड हैव अप्लाइड फॉर ए फॉरेन वेकेशन। अगर मेरे पास पासपोर्ट होता तो मैं एक फॉरेन की वेकेशन अप्लाई करता, मतलब मैं बाहर देश घूमने के लिए अप्लाई करता, वीजा वगैरह अप्लाई करता, हॉलीडे वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करता। तो देखो, कंडीशनल क्लॉज जो भी होगा ना उसपे इफ, इवन इफ या एज लॉन्ग एज या व्हेन या अनलेस इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, इस तरह के कंजंक्शंस यूज होंगे। ठीक, पहली चीज तो ये है। और दूसरा, इन्हीं को देखकर हम पहचानेंगे कि कंडीशनल क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज कौन सा है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी और उर्दू, एंड उससे आपको पता लग जाएगा कि इसका मेन रिजल्ट क्या है। सो द मेन रिजल्ट वाला जो पार्ट होगा दैट इज द मेन क्लॉज, और जिस पार्ट में कोई कंडीशन होगी दैट इज द कंडीशनल क्लॉज। जैसे इफ यू वर्क हार्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस आई विल गेट यू ए वॉच। तो इसमें जो कंडीशनल क्लॉज है वो है इफ यू वर्क हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम्स। ठीक है, ये कंडीशनल क्लॉज है कि अगर तुम एग्जाम्स में बहुत अच्छा हार्डवर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे। और मेन क्लॉज क्या है इसमें, आई विल गेट यू ए वॉच, मैं तुम्हें घड़ी लेकर दूंगा। तो मेरा तुम्हें घड़ी लेकर देना डिपेंड करता है तुम्हारे एग्जाम्स में हार्ड वर्क पे। तो जो चीज डिपेंड करती है दैट इज मेन क्लॉज, जिस पे डिपेंड किया जाता है दैट इज कंडीशनल क्लॉज। वैसे ही जो सेकंड सेंटेंस है, इफ आई हैड अ पासपोर्ट आई वुड हैव अप्लाइड फॉर ए फॉरेन वेकेशन, इसका कंडीशनल क्लॉज है इफ आई हैड अ पासपोर्ट, अगर मेरे पास पासपोर्ट होता। सो दैट इज द कंडीशनल क्लॉज, क्योंकि इसमें अगर वर्ड यूज हो गया है। तो मेन क्लॉज क्या है इसका, आई वुड हैव अप्लाइड फॉर ए फॉरेन वेकेशन, मैं एक फॉरेन वेकेशन पक्का अप्लाई करता। तो मेरा जो रिजल्ट है या तो मेरा जो मेन क्लॉज है वो डिपेंड कर रहा है मेरे पासपोर्ट होने या ना होने पे। अगर मेरे पास पासपोर्ट होगा तो मैं फॉरेन वेकेशन अप्लाई करूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं फॉरेन वेकेशन अप्लाई नहीं करूंगा। तो ये चीज मुझे बताओ कि एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट व्हाट इज ए कंडीशनल सेंटेंस एंड व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ए कंडीशनल सेंटेंस। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके, तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आप में से कौन बताएगा कि कितने टाइप के हो सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस? देखो, तीन ही तरह की कंडीशंस होती हैं, कौन बताएगा मुझे? अंदाजा जैसे लगाना होता है ना, तो अंदाजे तीन तरह के होते हैं। देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस को आप अंदाजा या तुक्का या गेस भी सोच सकते हो। ठीक है, तो जो आपका जो गेस होता है वो तीन तरह का होता है, या तो वो सही होता है, या तो वो गलत होता है, या फिर वो बीच में होता है, मतलब वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, जिसकी क्लैरिटी नहीं होती। तो उसी तरह कंडीशनल सेंटेंसेस भी जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तो एक होता है जो रियल कंडीशन होती है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज रियल कंडीशन, द सेकंड वन इज हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन इज इमेजिनेशन, कि आपने सोचा, वो है या नहीं है इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन वो आपकी इमेजिनेशन है, वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती है। एंड द थर्ड वन इज इम्पॉसिबल कंडीशंस, ये एक ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, जो नामुमकिन है। जैसे मैं बोलता हूँ कि इफ सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट आई विल वेक अप अर्ली, कि अगर सूरज वेस्ट से निकलेगा तो मैं जल्दी उठूंगा। सो दैट इज इम्पॉसिबल कंडीशन, क्योंकि सूरज निकलता तो ईस्ट से है, वेस्ट से निकल नहीं सकता। वैसे रियल कंडीशन का एग्जांपल देखो, इफ आई गेट ए बोनस आई विल बाय ए कार। तो अगर तो मुझे बोनस मिलेगा मैं गाड़ी खरीद लूंगा। ये समझ आया सबको? इफ आई गेट ए बोनस आई विल बाय कार, दिस इज ए रियल कंडीशन, कि अगर मुझे बोनस मिला मैं गाड़ी खरीद लूंगा। देखो, ये रियल कंडीशन क्यों है? आप बोलो ये हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, बिल्कुल जायज बात है। ये रियल कंडीशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर विल यूज हुआ है। और जो 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 वर्ड है ना विल, वो श्योरिटी दिखाता है, वो सर्टेनिटी दिखाता है कि किसी चीज के होने की या नहीं होने की। तो यहाँ से पता लगता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो पक्का है। और जो मेरा कंडीशनल क्लॉज है वो भी प्रेजेंट टेंस में है, इफ आई गेट अ बोनस, कि अगर तो मुझे बोनस मिलता है आई विल बाय कार, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में रियल कंडीशंस होती हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशंस कभी भी प्रेजेंट टेंस में ही नहीं होती। ठीक है, वैसे ही हम हाइपोथेटिकल कंडीशन एक देखते हैं, इफ आई हैड हर नंबर आई वुड कॉल हर अप।
अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको कॉल कर लेता। ठीक है, तो ये जो है ना, आई हैड हर नंबर, दिस इज पास्ट सेंटेंस। ओके, दिस इज ए पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस डिनोट करता है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन अगर उसमें एक कंडीशनल वर्ड ऐड हो। अगर मैंने लगाया ना इफ आई, क्योंकि वक्त बीत गया, और जो वक्त बीत गया और उसके पीछे मैं अगर लगा रहा हूँ या इफ लगा रहा हूँ या व्हेन लगा रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो हुआ ही नहीं कभी। तो वो हाइपोथेटिकल है कि फ्यूचर में हो सकता है और पास्ट में, लेकिन पास्ट में नहीं हुआ। तो इसके लिए आप कह नहीं सकते कि ये रियल है या नहीं है, मगर आपको इतना पता है कि ये हाइपोथेटिकल है, आपकी इमेजिनेशन है, और ये फ्यूचर में हो भी सकता है। फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे उसका नंबर मिल जाए और मैं उसको कॉल करूंगा। तो देखो, हाइपोथेटिकल कंडीशन को कैसे पहचाना जाएगा कि आपके पास जो मेन क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में है, और जो आपके पास कंडीशनल क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में है। और एक इम्पॉसिबल कंडीशन देखते हैं, इफ आई हैड बीन टू द पार्टी आई वुड हैव मेट हिम, कि अगर मैं पार्टी में गया होता तो मैं उनको जरूर मिल लेता। अब यहाँ पर जो कंडीशनल क्लॉज है ना, इफ आई हैड बीन टू द पार्टी, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस उन चीजों को बता उन कंडीशंस को बताता है जो कि हो सकती थी मगर हुई नहीं, और वो वक्त बीत गया। ठीक है, इफ आई हैड बीन टू द पार्टी, और अगर मैं सिर्फ बोलूंगा ना आई हैड बीन टू द पार्टी, दैट इज मैं पार्टी में एक टाइम पर गया था। सो दैट इज अ रियल कंडीशन कि हाँ ये हुआ है। लेकिन अगर मैंने उसके पीछे इफ लगा लिया या व्हेन लगा लिया या इफ एवर आई हैड बीन टू द पार्टी लगा लिया, सो वो एक कंडीशन बन गई जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो वक्त बीत गया। आई वुड हैव मेट हिम, मैं उनसे जरूर मिल लेता। तो वैसे ही हम इसको आगे और पढ़ेंगे, वी शैल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है इन तीनों कंडीशंस के बारे में या किसी और चीज के बारे में जो हमने पीछे पढ़ी है फ्रॉम एनी सेशन और दिस सेशन, प्लीज लेट मी नो राइट नाउ। वी हैव a good amount of time with us today, so we can discuss if you want. किसी को पूछना है कुछ? किसी को नहीं पूछना है? चलो मैं देखता हूँ। आई थिंक someone has asked me something from the last session, which is just give me 1 second. I think I have it with me on. Just give me 1 second. किसी को कुछ नहीं पूछना है? आर यू श्योर? हाँ, मैंने आपसे सबसे ना एक क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले कि मुझे ये बताओ कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं उनके साथ हम कंटिन्यूली या कंटिन्यूअसली वर्ड्स को यूज करते हैं या नहीं करते। एक एग्जांपल है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब अगर मैं बोलूंगा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट कंटिन्यूअली, तो मतलब ये है कि सूरज निकल रहा है बार बार ईस्ट से। और अगर मैं बोलूंगा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट कंटिन्यूअसली, सो इसका मतलब है कि हर दिन वो ईस्ट से निकलता है। तो अब मुझे ये कौन बताएगा कि हम कंडीशन ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स के साथ कंटिन्यूअली और कंटिन्यूअसली जैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Can use continuously with the universal truths because it happens once in a while, but continuously. ओके, और किसी को बताना है कुछ इसके बारे में? ये एक्चुअली आप ही में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी जिसने पूछा था अगर वो बताए। Uh, कौन बता रहा है? with the universal truth, we are not able. We should not use the continually or continuously present.
यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो मैं आपको, हमारे पास 2.5 मिनट रह गए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज का ना एक रूल है जिसको आप सारे समझ लो। यूनिवर्सल ट्रूथ्स के साथ हम ऑब्वियस वर्ड्स कभी नहीं लगाते। जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो अब अगर मैं कंटिन्यूअसली उसके साथ लगाऊं या कंटिन्यूअली उसके साथ लगाऊं, या तो ये दो वर्ड्स ना लगाऊं, या फिर मैं ये जो सूरज जो निकल रहा है उस टाइम मैं वहां प्रेजेंट हूं या नहीं हूं, इस चीज से सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो यूनिवर्सल ट्रूथ इज समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, जो कि होगी ही होगी, और आपका उससे उस सेंटेंस पर कुछ इम्प्लीमेंट करने, एक्स्ट्रा वर्ड लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो चीज ऑब्वियस हो जाती है। और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्वियस चीजों के साथ या यूनिवर्सल ट्रूथ्स के साथ हम इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करते। ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। अगर आप इस सेंटेंस को लिखते भी हो ना कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट कंटिन्यूअसली, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, but linguistically this is incorrect because we are not bound to use these obvious words with universal truths। तो ये चीज समझ आई सबको कि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ ये चीज। जैसे एक और चीज है, मेरे को याद है, मैं शायद आई वाज इन 10th क्लास, और मेरे फ्रेंड की भाभी को एक बेबी था एक्सपेक्टेड। सो मेरे जो फ्रेंड था उसने एप्लीकेशन लिखा था, माई सिस्टर इन लॉ इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी, सो आई नीड ए लीव फॉर 3 days। और मेरे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने वो एप्लीकेशन काट दी। उन्होंने कहा ये गलत है। हमने उनसे पूछा गलत क्यों है, तो ही सेड कि शी इज ए ह्यूमन बीइंग एंड शी विल ऑलवेज डिलीवर ए बेबी, शी इज नॉट गोइंग टू डिलीवर एन एलिफेंट और ए हॉर्स और ए जीब्रा। तो ये ऑब्वियस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ ऑब्वियस वर्ड्स नहीं यूज करते। तुम इस तरह से इस चीज को समझो। अगर आपके पास कोई डाउट होगा, प्लीज लेट मी नो। You guys are very wonderful today. I am thankful to all of you for this session. We shall meet again. Okay? Bye.